Hello viewers, I am Deepthi. Today I am going to discuss important dates and important historical events associated with these dates for ICSE Class 10 History paper. As I have told you in my solution of specimen paper video that it is very important for you to see history as a movie. For this you need to learn a few dates so that you can learn the causes and consequences of all the events related with your history paper. As you know, our history starts with first war of independence. It means 1857. So our first important date is March 29, 1857. Resentment by Mangal Pandey at Barakpur. It means this is the immediate cause for this first war of independence. Next is November 1, 1858. And here Queen Victoria's proclamation was read by Lord Canning. And who was Lord Canning? He is the first Viceroy of India. 1876, Queen Victoria assumed the title of Empress of India. 1877, the Grand Delhi Darbar was organized by Lord Lytton. 1878, Vernacular Press Act and Indian Arms Act were introduced. 1882, Vernacular Press Act was repealed by Lord Ripon. Repealed by Lord Ripon and applied by Lord Lytton. 1883, Ilbit Bill was prepared. 1883 again, first session of Indian National Conference, not Congress, conference was held at Kolkata. 1885, foundation of Indian National Congress. Where? In Mumbai. And who is the president? Womesh Chandra Banerjee was the president. कांग्रेस के टोटल 4 सेशंस हैं जिनकी डेट्स आपने याद रखनी है, प्रेसिडेंट के नेम याद रखने हैं और प्लेस याद रखने हैं कि कहां पर ये सेशन हेल्ड हुए थे. 1886 सेकेंड सेशन ऑफ INC इंडियन नेशनल कांग्रेस presided by Dadabhai Naroji and the place is Kolkata. 1899 to 1905, this is the tenure of Lord Curzon. 20th July 1905, the partition of Bengal was announced. 16th October 1905, the partition of Bengal was implemented. क्योंकि आपको अब MCQ क्वेश्चंस आने हैं तो क्वेश्चंस में थोड़ी डिटेल में भी जाना है. अदरवाइज हम लिखते थे 1905 पार्टीशन ऑफ बंगाल, लेकिन 2 क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड हियर. वन इज व्हेन इट इज अनाउंस्ड एंड अनदर इज व्हेन इट इज इम्प्लीमेंटेड. सो दोनों को लर्न करना है. 1905, Gopal Krishna Gokhale became the president of Congress and formed Servants of India Society. 1906, formation of Muslim League. 1907, the Surat split and presidentship is राज बिहारी घोष के हाथ में थी इस टाइम में. और सूरत स्प्लिट हमारा इनका सबसे ज्यादा डिस्प्यूटेड सेशन था क्योंकि दोनों स्प्लिट जो कांग्रेस के सेक्शंस थे उनमें स्प्लिट हो गई थी, इसीलिए नाम ही सूरत स्प्लिट है. तो जगह तो पता चली गई कि सूरत है और प्रेसिडेंट है राज बिहारी घोष. 1909, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स. 1913, मोहम्मद जिन्ना joined Muslim League and Muslim League adopts resolution of self-governance. 1914 to 1918, this is First World War. 1916, the Lucknow Pact between the Congress and Muslim League and held at Lucknow, नाम से ही पता चल रहा है, and presidentship is under अंबिका चरण मजूमदार. 1916 में लखनऊ पैक्ट साइन हुआ. तिलक और ऐसे बहुत सारे लीडर्स के एफर्ट्स की वजह से कांग्रेस के दोनों फैक्शंस जो अलग हो गए थे वो भी इकट्ठे हो गए और मोर ओवर मुस्लिम लीग और कांग्रेस भी दे केम ऑल टुगेदर. तो बहुत मुश्किल से ये लखनऊ पैक्ट साइन हुआ और उसके बाद फिर थोड़े टाइम बाद फिर से ये सब स्टार्ट हो गया. तो स्प्लिट हुआ था 1907 में और लखनऊ पैक्ट साइन हुआ 1916 में. और इसी बीच गांधी जी ने इंडिया में एंट्री ले ली और उसके बाद की सारी हिस्ट्री हमारी गांधी जी के नाम हो जाती है. तो 1915 में महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया. 1917 में चंपारण सत्याग्रह वाज ऑर्गेनाइज्ड. 1918 में अहमदाबाद मिल वर्कर सत्याग्रह एंड खेड़ा सत्याग्रह वर ऑर्गेनाइज्ड. हालांकि इन तीनों पे तो क्वेश्चंस नहीं आते हैं, पर गांधी जी की एक्टिव जो एंट्री थी पॉलिटिक्स में वो इसके बाद हुई है. 1919 में रॉलेट एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड एंड एट द सेम टाइम खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म्ड इन मुंबई. तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में सेकर. तो अब आप तीनों डेट्स देखिए 1919.
तो 1920 में गांधी जी ने एक्टिव पॉलिटिक्स में एंट्री कहां से ली? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया 1920 में। तो अब आपको अगर पता है कि 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है, उसके कॉजेज क्या हैं? उसके कॉजेज यही तीनों हैं। कौन से तीन? रॉलेट एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया, खिलाफत कमेटी बनाई गई और जलियांवाला बाग में सेकर उन रॉन्ग्स के लिए कहा गया। तो ये तीनों उसी के कॉजेज हैं। तो कॉजेज हैं तभी तो मूवमेंट स्टार्ट हुआ, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो मैं यही बोल रही हूं आपको कि अगर आपको डेट्स याद हैं तो कॉजेज और कॉन्सिक्वेंसेज बहुत इजीली याद हो जाएंगे। तो 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा का इंसिडेंट हो गया, जो एग्रेशन हुआ था। इसी के चलते 12 फरवरी 1922 को विदड्रॉल ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, गांधी जी ने इस मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया। 10 मार्च 1922 को गांधी जी वॉज अरेस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम। 1928 इसके बाद डायरेक्टली क्योंकि अरेस्टेड हो गए थे, 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई है। देन साइमन कमीशन इंडिया में आया है, साइमन कमीशन केम टू इंडिया। 1929 डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज। 1930 दांडी मार्च, दांडी मार्च एंड फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब आपको पता है 1930 दांडी मार्च है, तो दांडी मार्च मीन्स किसके लिए दांडी मार्च किया गया था? साबरमती आश्रम से दांडी तक के लिए मार्च किसके लिए किया गया था? 1930 में ही लॉन्च ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यानी कि सेकेंड जो मास मूवमेंट गांधी जी का आया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उसकी डेट क्या है? 1930 ही है। उसका कॉज आपको दिखाई ही दे रहा है। 1931 में गांधी इरविन पैक्ट साइन किया गया, जिसके चलते सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को दोबारा से सस्पेंड कर दिया गया। 1932 में थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, रिन्यूएबल ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ और पूना एक्ट भी साइन हुआ। तो पूना पैक्ट का साइन होना, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का रीन्यू करना, हालांकि उसके बाद वो उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया जितना उस एक साल में हुआ था। और 1934 में एट लास्ट एंड ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट खत्म हो गया। जो लोग सपोर्ट कर रहे थे उन्होंने सपोर्ट ही नहीं किया, कि पूछते उनसे पूछ के तो वापस नहीं लिया जा रहा था, तो बाद में उन्होंने सपोर्ट ही नहीं किया। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, जिसको 1935 ही एक्ट कहते हैं। 1939 से 1945 में कंटेम्पररी वर्ड में आपने देखा ही हुआ है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। 1939 से 1945। देन 1940 जिन्ना डिक्लेयर्ड टू नेशन थ्योरी एंड अगस्त ऑफर, दोनों ही 1940 में है। देन 1942 क्रिप्स मिशन एंड क्विट इंडिया मूवमेंट। तो 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसने गांधी जी ने दिया था डू और डाई का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लोगन है, वो हमने करना है 1942 में। तो उसके बाद जो डेट्स आ जाती हैं उसमें सुभाष चंद्र बोस कब पैदा हुए, ये सब तो हमारे को आना नहीं है। तो जो अगले चैप्टर, यानी आपको पता है कि 1942 में जब गांधी जी का क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, इधर से आईएनए का यानी कि सुभाष चंद्र बोस का भी हमारी पॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जिसको हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो 1939 में बोस वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस एट द त्रिपुरी सेशन। 1939, इससे पहले की डेट्स हैं ये। 1939 में बोस का इलेक्शन हुआ था प्रेसिडेंट बनके त्रिपुरी सेशन में। 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक वाज फॉर्म्ड बाय नेताजी। तो 3 मई 1939 में उन्हें फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। 1 सितंबर 1942 को इंडियन नेशनल आर्मी वाज एस्टेब्लिश्ड। तो ये दोनों कहीं पैरेलल चल रहे हैं, इधर से गांधी जी का मूवमेंट और इधर से सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी। 1 सितंबर 1942 में एस्टेब्लिश हुई। 18 अगस्त 1945 को नेताजी वाज किल्ड इन ए प्लेन क्रैश। चाहे उनका स्पैन कम था, बट उनका जो उन्होंने जो काम किया है हमारे लिए, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ये सारी डेट्स भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। 2-3 ही डेट्स हैं जो हम इसमें से कर रहे हैं। उसके बाद 1945 में सेकेंड वॉर खत्म हो गई थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में बात हो रही है। 1945 में इंडियन पॉलिटिक्स में और जो डेट्स हमें कुछ लर्न करनी है वो है वेवल प्लान आया था 1945 में। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन अराइव्ड एट इंडिया 1946। 16 मई 1946 में कैबिनेट मिशन सबमिटेड द कैबिनेट मिशन प्लान सबमिट भी हो गया था। हालांकि कैबिनेट मिशन प्लान में भी हमारे लिए कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है इस बार के सिलेबस के हिसाब से। 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे, जिसमें सब कुछ ही होना स्टार्ट हो गया था, सारे वॉयलेंस स्टार्ट हो गए थे। 24 मार्च 1947 लॉर्ड माउंटबेटन बिकेम द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। 15 जून 1947
कांग्रेस एक्सेप्टेड द माउंटबेटन प्लान। और फिर इसके बाद तो आपको पता ही है, माउंटबेटन प्लान के बाद 15 जून 1947 कांग्रेस के एक्सेप्ट करते ही 15 अगस्त 1947 में कंट्री वाज डिवाइडेड इनटू टू इंडिपेंडेंट नेशंस। इट मींस इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट एंड देन 26 जनवरी 1950 न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड एंड इंडिया बिकेम रिपब्लिक। इट मींस हमें आजादी मिल गई थी, यानी हमारी इंडियन हिस्ट्री खत्म हो रही है। इसके बाद कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड की कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हम वो भी करेंगे, जिसमें हमारी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आ जाती है और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड कुछ डेट्स जो हमने जरूर लर्न करनी है। 1882 ट्रिपल अलायंस इंक्लूडेड जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड इटली वाज फॉर्म्ड। ट्रिपल अलायंस कब बना था? 1882। देन 1907 ट्रिपल एंटिटी कंप्राइजिंग फ्रांस, रशिया एंड ब्रिटेन वाज फॉर्म्ड। ये तीनों आपको एमसीक्यू के फॉर्म में भी करने हैं, डेट के साथ भी कर लीजिए कि ट्रिपल अलायंस किन तीन में बना है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड इटली, और ट्रिपल एंटिटीज फ्रांस, रशिया एंड ब्रिटेन। नेक्स्ट इज 28 जून 1914। हम इस डेट को कैसे भूल सकते हैं? ये है हमारा इमीडिएट कॉज फॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। Archduke Frankish Ferdinand, the heir to the throne of Austria-Hungary, was assassinated. It means हमारा immediate cause है ये। 1 अगस्त 1914 में ही जर्मनी डिक्लेयर्ड वॉर ऑन रशिया। देन 3 अगस्त 1914 जर्मनी डिक्लेयर्ड वॉर ऑन फ्रांस। फर्स्ट को ही रशिया पे अटैक हुआ है और थर्ड को ही फ्रांस पे जर्मनी के द्वारा। 4 अगस्त 1914 ब्रिटेन डिक्लेयर्ड वॉर ऑन जर्मनी और बदले में ब्रिटेन ने जर्मनी पे अटैक किया है 4 अगस्त को। 1915 इटली ज्वाइंड द वॉर अगेंस्ट ऑस्ट्रिया हंगरी एंड जर्मनी की यू बोट सैंक द ब्रिटिश शिप कॉल्ड ल्यूस्टेनिया। नेक्स्ट इज 6 अप्रैल 1917 यूएस डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट जर्मनी। अभी तक यूएस ने नहीं किया था, वर्ल्ड वॉर 1914 में स्टार्ट हो गई थी, बट यूएस की एंट्री कब हो रही है? 1917 में, वॉर को एक पूरा इफेक्ट देने के लिए कि खत्म करा जाए उसको। 1914 से 1918 मींस हमारी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गई और 1918 मींस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंडेड। 1919 ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स वाज साइंड। हम इस डेट को भुला ही नहीं सकते क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स पे पक्का आता है। 1920 फॉर्मेशन ऑफ लीग ऑफ नेशंस बनाई गई थी, चाहे वो कितनी भी सक्सेसफुल हुई थी, बट वो बनी तो है, तो हमें उसके बारे में कुछ तो याद करना है, या फिर उसके कॉजेस क्या थे उसके फेलियर के, वो भी पेपर में बहुत बार आपसे पूछे ही जाते हैं। इसके बाद हमारा चैप्टर है जो नाजिज्म और फासिज्म के ऊपर है। तो 1922 राइज ऑफ मुसोलिनी इन इटली एंड 30 जनवरी 1933 Hitler became the chancellor of Germany and he formed the Nazi government in Germany। तो हिटलर का आना और मुसोलिनी का आना, हम सारी डेट्स इनके साथ एसोसिएटेड याद नहीं रख सकते हैं, सिर्फ मुसोलिनी और इनकी एंट्री कब हुई है बस उतना सा हम इसके लिए याद करेंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड अगर हम बात करेंगे तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के साथ रिलेटेड हमारा आ जाएगा 1 सितंबर 1939 जर्मन इन्वेजन ऑफ पोलैंड, बिगिनिंग ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यानी कि इमीडिएट कॉज फॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जर्मनी ने जानबूझ के पोलैंड को इन्वेड किया ताकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो सके। 3 सितंबर 1939 डिक्लेरेशन ऑफ वॉर बाय इंग्लैंड एंड फ्रांस अगेंस्ट जर्मनी। 7 मई 1945 जर्मनी ने सरेंडर कर दिया, जर्मनी सरेंडर्ड। 6 अगस्त 1945 एटम बॉम्ब ड्रॉप्ड ऑन हिरोशिमा। 9 अगस्त 1945 एटम बॉम्ब ड्रॉप्ड ऑन नागासाकी। 15 अगस्त 1945 सरेंडर ऑफ जापान एंड एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर दोनों से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है। फासिज्म नाजिज्म कंटेम्प्रेरी वर्ड में से भी आपको क्वेश्चंस करने ही हैं। फिर यूनाइटेड नेशंस का एक क्वेश्चन आता है आपको पेपर में, इन्हीं में से तो आपको चॉइस मिलती है। बार बार जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो क्वेश्चन आता है मैम पेपर तो 80 मार्क्स का होता है, वीडियो 110 मार्क्स की क्यों बन रही है? भाई चॉइस देनी छोड़ दी क्या काउंसिल ने? चॉइस क्यों नहीं आप लोग याद रखते हैं? October 24, 1945 UNO was formed at San Francisco and it officially come into existence।
यूएनओ का आना हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल डेट है, चाहे कंटेम्प्रेरी वर्ड के, बट हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। 24 अक्टूबर 1945 UNO was formed at San Francisco and it officially came into existence। तो यहाँ हमारी बहुत सारी डेट्स जो इंपॉर्टेंट हैं वो हमने ऑलरेडी कवर कर ली हैं। मेजर एजेंसीज में से आपको ज्यादातर उसके फंक्शंस पूछे जाते हैं कि किसने क्या बनाया, कौन कौन सी तरह से उन्होंने कौन कौन से फील्ड में कैसे कैसे कंट्रीब्यूशन दी है। 11 दिसंबर 1946 यूनिसेफ वाज फॉर्म्ड, 4 November 1946 UNESCO was formed and 7th April 1948 World Health Organization WHO was formed। तो यूनिसेफ, यूनेस्को और WHO, आपको पता ही है इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस भी आपने करनी होती हैं, तो इनकी फॉर्मेशन की डेट भी आपको पता होनी चाहिए कि ये कब कब फॉर्म हुए हैं। और लास्ट में आता है हमारे पास नैम यानी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में कोई पर्टिकुलर डेट ऐसी है नहीं है, बस इसमें आपको पता है कि नेहरू जी का इंडिया की तरफ से पंचशील का जो प्रिंसिपल है वो है, और बाकी नैम में क्या किसको आगे रखा गया था, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, इसी तरह के क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे इसमें से। तो विद दिस आई कंक्लूड माय टुडेज वीडियो रिलेटेड विद द डेट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री एज वेल एज कंटेम्प्रेरी वर्ड रिलेटेड विद ICSE क्लास 10। होप आई एम एबल टू मेक श्योर दैट ऑल दीज डेट्स आर इंपॉर्टेंट, बट आपको पता है सारी डेट्स तो पेपर में नहीं आ जाएंगी, बट उनको समझने के लिए हमें बाकी डेट्स को पढ़ना है। Thank you for watching till the end. Keep watching, sharing and subscribe to my channel. Thank you.